hearty welcome to everybody to Odisha Adarsh Vidyalaya Chantaribol Kamakhanaga. So let's enjoy today's program that is based on youth parliament or mock parliament. So let's enjoy the beautiful program. Rehearsal of the actual parliament, that is the law making body of our nation. India is a democratic country. All the citizens are treated equally in this particular country. So, what is the role of this mock parliament in the school platform? It is organized to let you know how we are ruled by our representatives. What is the role of Prime Minister, President, Cabinet Minister, Minister of States and Minister of Independent Charges? Today we will have a parliament and that is one session of Lok Sabha. We do have two houses, one is Lok Sabha, another is Rajya Sabha, very right. So today we will have youth parliament, it is also called mock parliament. Dear kids, throughout the program there will be the actual situation what it occurs in our parliament. So you will have your patience, all of you are required to maintain discipline for which you will able to know the function of this particular parliament or discussion what it is going to help today. So without spending much of our time, once again on the behalf of this Vidyalaya, on the behalf of Social Science Department, I Sushant Sahu welcome you all to this platform. Right now I would like to request Honorable Principal Madam of the day along with all the respected teachers to light the diya for inaugurating the program. Please madam and please all the teachers, please be available here. Please madam. So all of you please a big round of applause for the inaugural ceremony. माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय पधारेंगे. A very pleasant morning to all and a hearty welcome to this assembly. Here we will have an enthusiastic and a healthy discussion for the development of our country. Before the discussion, I would like to request all the respected members of this assembly kindly take your position. We will have our national song. Thank you all. Now, there will be an oath or affirmation taking ceremony.
our Chief Secretary is requested for the oath taking or official proceeding of the new member. Chief Secretary, please. Thank you, Honorable Speaker, Madam. Now, I would like to request the new member of Dhamnagar constituency of Odisha to take oath or affirmation. Respected members, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. Respected member, in which language you would prefer to take the oath? English, please. I, Aliyah Prasin Rao, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Now, I would like to request another one new member, Ms. Pulakita Mahant from Bhagalpur constituency of Bihar, to take oath or affirmation. Respected member, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. Respected member, would you like to take... Respected member, in which language you would prefer to take the oath? मैं पुण्यप्रभुता महांती, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का सदापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। Now, I would like to request Honorable Prime Minister Sir kindly introduce the new members. Thank you, Honorable Speaker, ma'am. I would like to welcome two new members to our house. First of all, I would like to welcome respected Aliyah Prasin Sahu of Dhamnagar constituency from Odisha, who has been appointed as our new defense minister. Along with this, I would like to welcome respected Punya Pulakita Mahanti, who has been appointed as our new health minister. मैं आशा करता हूँ कि वो दोनों अपनी आशा और मन और लगन से अपना काम निर्वाह करें। धन्यवाद। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश की एक महान रत्न माननीय नेताजी आज हमारे देश में नहीं है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था और हाल ही में मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण 6 फरवरी 2022 को उनका इंतकाल हो गया। वो थी हमारे देश की सूर साम्राज्ञी जिन्हें मां सरस्वती का आशा जय है। भारत रत्न से सम्मानित 92 साल की इन महान गायिका के निधन से आज पूरा देश शोक में है। पूरे विश्व के सारे कला प्रेमी आज उनके लिए दुख प्रकाश कर रहे हैं। नेता, अभिनेता, सामान्य लोग तथा उद्योगपति सभी उनके साथ जुड़े हर एक याद को साझा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि उनके जैसा और एक महान रत्न कदाचित ही हमारे देश में जन्मे। Now, I would like to request Honorable President Madam to say few words for the immortal soul.
ऑनरेबल स्पीकर मैडम, तो जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा कि ये हमारे लिए एक दुख की बात है कि हमारे देश के एक जाने माने लोकप्रिय व्यक्तित्व का निधन हो गया है। वो है हमारे देश की सबसे बड़ी गायिका श्रीमती लता मंगेशकर जी। श्रीमती लता मंगेशकर जी की निधन 6 फरवरी 2022 को 92 उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हो गया। वो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी गायिका थी जिन्हें हर कोई जानता था। लता जी को देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। लता जी का भारतीय संगीत में अतुल्य योगदान है। लता जी जब गाती थी तब ऐसा लगता था जैसे कि साक्षात सरस्वती माता गा रही है। उनकी आवाज ने देश को मोहित किया था, देश को प्रेरित किया था और देश को भावनाओं से भर दिया था। वो अपने संगीत के माध्यम से हमारे दिल में अपना एक अलग ही स्थान बनाकर गई थी, जिन्हें हम ना ही कभी भूल पाएंगे। वो अपने आप में ही भारत की एकता के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। आज मैं आदरणीय लता जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देती हूँ। Now, I would like to request Honorable Prime Minister Sir to say few words for the grave soul. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैम। मित्रों, जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदय और प्रेसिडेंट मैम ने बोला, मुझे भी दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे एक जाने माने गायिका श्रीमती लता मंगेशकर का निधन हो गया है। आई हैव ऑलवेज नोन Srimati Lata Mangeshkar as a singer. Also, she is known as Suro Kokila and Nightingale of Bollywood. She could understand the emotion of music better than anyone. More than that, she was bestowed with a magical voice by the Almighty. The way she sang the song is a testimony of her devotion to art. Now, I think she was came naturally to her. What she is would not have been possible without her dedication to art. आज मैं उन्हें आदरणीय लता मंगेशकर को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। Respected opposition leader is requested to say something for the peace of the Holy Soul. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैम। तो जैसे कि स्पीकर मैम, प्रेसिडेंट मैम और पीएम साहब ने बोला लता मंगेशकर जी के बारे में, वैसे मैं भी लता मंगेशकर जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ। वो एक लोकप्रियता और आदरणीयता गायिका थे। वो लगभग 30 से भी ज्यादा फिल्म कर चुके थे। मुझे ये बात बोल के दुख हो रहा है कि एक लंबी बीमारी के चलते इसका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। भगवान उसके आत्मा को शांति दें। Now, I request all the respected members to take their position. Now, we will have silent prayer for 1 minute in the remark of respect to the Holy Soul. Om Shanti, Shanti, Shanti. Now, I would like to draw the attention of all the members to suspend the work of this assembly for 5 minutes for the homage for the immortal soul of Lataji. Once again, we will meet here and discuss our regular
discussion. Now, the important part of this assembly, the question hour is going to begin. There are some star questions and some answer questions. But here we will discuss the answer question. So, the very first question will begin. I request respected opposition member Swagat Kumar Khuntia to ask the question number 801. हम सबको पता है एक देश के लिए उसका इकोनॉमिक कंडीशन मायने रखता है, तो उस देश को लोग बोल पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी हमारी पहचान, पर हमारे देश के लोग ये बोल पाएंगे ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश का पहले और अब की इकोनॉमिक कंडीशन को देखें तो इसमें आकाश और पाताल का फर्क है। दिन ब दिन इसको हमारे इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज होने के नाते वो घटते हुए जा रहा है। तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और हमारा सरकार इसको 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 समझाने के लिए क्या करेंगे, वो सरकार क्या कर रही है इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। Now, I request the Finance Minister to follow up the question. थैंक यू मैम स्पीकर। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि 2021 और 2022 ये 2 साल कुछ ऐसे थे जहाँ कोविड पॉजिटिव के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और कोरोना ने अपना महातांडव इन 2 सालों में रचाया था। और इस कोविड महामारी के चलते पूरे विश्व में सभी देशों में कुछ न कुछ बदलाव आया है, जिसके तौर पर हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा गिरावट दिखाई दी है। और इन 2 सालों में जैसे कि मैंने बोला कि कोविड बहुत बढ़ गया था, इसीलिए हमारे सरकार ने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाकी सालों के मुकाबले इन 2 सालों में सबसे ज्यादा सोशल प्रोटेक्शन पे खर्चा किया था। और जो लॉकडाउन और शटडाउन 2 वर्ष तक चला था, उसके वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना नौकरी गंवाया था। इस समस्या का हल निकालते हुए हमारी सरकार ने टैक्सेशन और रेवेन्यू को बहुत घटा दिया था, जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें थोड़ा गिरावट दिखाई दी है। और अगर आपके लिए टैक्सेशन को कम करना और सोशल प्रोटेक्शन पर ज्यादा खर्चा करना ये गलत था, तो आपके लिए भी सही क्या था? लोगों को उनके मरते हालातों पर छोड़ देना और उन्हें सुरक्षा प्रदान ना करना, जबकि उन्हें उनकी सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब। हमें स्पीकर मैम, ये बात हम मान लेते हैं कि 2021 में वो कोरोना के समय में हमारे इकोनॉमिक कंडीशन घटता है। तो 2021 में जबकि कोरोना ने अपना महामारी रूप दिखाया था, तब भारत में एक इतिहास लिखा था, जो कि कोरोना के समय में भी वो अपना जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो इंक्रीज किया था। पर 2022 के मुकाबले में 2021 का जीडीपी लेवल बहुत अधिक था। यदि मैं ये बोलूंगी तो सब लोग मान लेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल अनाउंस हुआ था। तो जब 2022 में उन्होंने अपना कुछ भी महत्व रूप नहीं दिखाया था, तो क्यों हमारा देश का जीडीपी लेवल क्या हुआ? तो 2021 में हमारा जीडीपी लेवल 8.3% था और हमारा 2022 में जब कोरोना ने कुछ भी महत्व रूप नहीं दिखाया था और लोगों ने सफलता नहीं पाई थी कोरोना में, तो हमारा जीडीपी लेवल 7.7% हुआ। तो क्यों हमारे देश में इतना जीडीपी लेवल होता? तो ये सरकार कर क्या रहा है और क्या कर रहा है हमारा जीडीपी लेवल को इंक्रीज करने के लिए? क्या कर रहा है सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय? 121 करोड़ योजना करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। As we all know, land, labor, capital and entrepreneurship are the 4 factors to strengthen one's country's economy. So now, our government is highly investing in infrastructure, labor service, technological changes, etc. और माननीय सदस्य, आपके ये बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तो लगता है कि आपकी सरकार जब शासन भाग पे था, तब आपको इंडियन इकोनॉमी नाम की शब्द आती नहीं होगी या फिर आप स्कूल पे पढ़े नहीं होंगे। और तब तो आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि पूरे विश्व में इंडियन इकोनॉमी कितने नंबर पे थी। चलिए छोड़िए, मैं ही आपको बता देती हूँ। आपके सरकार के वक्त तो भारत में गरीबी ऐसे थी जैसे कि समंदर में नमक। और मैं आपको क्या बोलूँ,
और हमारे सरकार के बाद डेवलपमेंट रेट इतना बढ़ गया है कि नाउ वी कैन प्राउडली से दैट इंडियन इकोनॉमी इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड कैलकुलेशन 2021 Indian economy will surpass UK and will become the 5th largest economy in the world by 2048. और माननीय सदस्य, हमारी सरकार ने आप भारत को उस स्थिति में से बढ़कर चला है जब आपके सरकार ने उसमें से डेवलपमेंट नाम का शब्द भी निकाल दिया था। और अगर आप इसे डेवलपमेंट नहीं बोलोगे तो हमें मालूम नहीं कि डेवलपमेंट आप किसे बोलोगे, क्योंकि आपके सरकार के पास तो गरीबी बहुत बढ़ गई थी जो कि हमारे सरकार के पास बहुत घट गई है। आपके सरकार ने आपके सरकार के पास क्या कुछ किया था, क्योंकि कुछ नहीं के बराबर था। उससे तो अच्छा हमारा 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी का टाइटल है। और 6 नंबर में क्यों रुको, 1 नंबर में आके दिखाओ और छोड़ो। आपको तो पता नहीं है 1 नंबर में कैसे आए। हम सबको मालूम है कि हमारा इकोनॉमी में हमारे देश की आर्थिक स्तर को सुदृढ़ बना जाए, इसलिए तो बोला जाता है हमारी इकोनॉमी हमारी पहचान। पर इसलिए तो बोला जाता है हमारी इकोनॉमी और हमारी पहचान। हमारे देश में एक ऐसी खासियत भी है जो सारा विश्व में लार्जेस्ट कंट्री का नाम कहलाता है। लार्जेस्ट कंट्री का नाम मतलब लार्जेस्ट सिविलियन, वो जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लार्जेस्ट सिविलियन मतलब वर्किंग पीपल, वर्किंग पीपल का मतलब जो न्यू आइडियाज होते हैं और वो न्यू आइडियाज को बाहर लाने का काम है एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे देश में इतना सफिशियंट है वो तो मुझे नहीं लगता। और 131 करोड़ लोगों को नहीं पता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में, वो बहुत कम माना देश में। तो यदि आप बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमी में बहुत इंक्रीज किया है, तो हमारे देश में ऑल एम्प्लॉयमेंट का नाम क्यों है? आप बताइए। एक तो 131 करोड़ लोग जानना चाहेंगे कि ऑल एम्प्लॉयमेंट कब हटेगा और ऑल एम्प्लॉयमेंट का नाम क्यों हट जाएगा हमारे देश में। माननीय सदस्य, आपको हमारे देश के बारे में इतना फिक्र ये जानकर बहुत अच्छा लगा। इसलिए तो आपके सरकार के पास हमारे भारत जिसे कि सोने की चिड़िया बनी जाती थी, उसी भारत में गरीबी आसमान छू रही थी। तब तो लोगों को खाने के 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी। अरे आप तो खुद के जमाने में कुछ नहीं कर पाए, अब चले हमें बात बोले। अरे आप तो खुद दूसरे के घर में बैठे हो, फिर भी आप हमें शायद आपको मालूम नहीं होगा उस वक्त की डेवलपमेंट किससे बना देते हैं। चलिए छोड़िए, आपको अभी इतना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए, जिसके द्वारा कि हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम किया जा सके। और अगर बात आप बोले यंगेस्ट सिविलियन की, तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारे देश में यंगेस्ट सिविलियन तो बहुत है, लेकिन उन लोगों में आधे से ज्यादा लोग भीख मांगना ज्यादा पसंद करते हैं। और एक आपको शॉकिंग बात बताऊं, हमारे देश में ऐसे भी भिखारी हैं जो कि अब करोड़पति हैं, लेकिन वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने के बजाय भीख मांगना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों की बात करें तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी कैसे? और आपको तो ये भी मालूम होगा कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप लिए है जिससे कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे कम किया जा सके। और अनएम्प्लॉयमेंट एक छोटी सी चीज नहीं जो कि आप लोग चूक के बजाय और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म। अनएम्प्लॉयमेंट पहले था, अब है और आगे रहेगा, लेकिन हम उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं और आगे चलकर उसे थोड़ा थोड़ा करके पूरे भारत में से हटाया जा सकता है। इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। चाय तो अच्छा लगा पर चाय वाला अच्छा नहीं लगा। माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाए रखें। कोविड-19 ने अपना तांडव पूरा विश्व में रचा है और सबसे ज्यादा किसी देश की इकोनॉमी को भी कोविड-19 ने हैम्पर किया है और उसी की वजह से ही हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया है। लेकिन आई अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट दैट उनकी वजह से जो स्टेप लिए जा रहे हैं उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हो जाए। This was a nice discussion by our respected opposition member Sagar Kumar Chintia and respected Finance Minister Subhankar Panda. Now let's move to the next question. I request respected opposition member Rashmi Ranjan Panda kindly ask the question number 292. थैंक यू नमस्कार। आपने मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए चांस देने हेतु आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश यानी कि भारत जो आज डेवलपिंग कंट्री के नाम से भी जाना जाता है और विश्व भर में एक यंगेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के जनता जनार्दन आज ये जानना चाहता है कि हमारा देश के जो दो स्टेट जो डेवलप स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, लाइक महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इतने डेवलप होने के बाद भी उनका जो कोविड पॉजिटिव केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम क्या ये जान सकते हैं हमारा गवर्नमेंट क्या क्या पदक्षेप क्या है, क्या क्या प्रोसीजर कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव केस को डील करने के लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय जी। Respected Health Minister Purna Pulabhai Mohanty is requested to follow up the question. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस सब्सिडेंट्री होने के नाते मुझे दुष्टगत बताना पड़ रहा है कि विश्व भर में फैला हुआ कोविड-19 हमारे देश भारत में भी अपना तांडव रच रहा है। इसमें हमारे देश से कई मासूम लोगों की जान जा चुकी है। जैसे कि माननीय सदस्य जी ने बोला, हमारे देश के जो डेवलप स्टेट यानी कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इसके कोविड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने इस स्टेट से सभी जिले में कोविड-19 सर्विस खोले हैं और सभी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ये बोला गया है कि वो हर दिन हमें ये रिपोर्ट देते रहेगी कितने कोविड के न्यू केस आए और कितने केस घटे। ज़्यादा कोविड केस आने वाले जगह में लॉकडाउन जरूर किया गया है। वही जगह पे जगह के हॉस्पिटल में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अच्छे से इलाज हो सके, इसीलिए हर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर और आइसोलेशन बेड का प्रबंध किया जा रहा है। लोगों की हेल्थ को लक्ष्य में रखते हुए हमारी सरकार ने कई सारे प्रबंध किए हैं, लाइक क्वारंटाइन फैसिलिटी एंड इम्प्रूव टेस्टिंग फैसिलिटी। माननीय सदस्य जी, गिरगिट की तरह रंग बदलना तो आप ही सीखना चाहिए। मतलब कुछ भी कहकर कैसे बचना है वो आप ही हमारा देश के लोगों ने सीखे नहीं। मैंने आपको पूछा हमारा देश के जो डेवलप स्टेट महाराष्ट्र तमिलनाडु के रिपोर्ट देने के लिए, पर आपने देश के दो मुख्य शहर चेन्नई और कोलकाता का रिपोर्ट दिया, पर उसमें भी तो कोविड पॉजिटिव केस बहुत ज्यादा है ना। इसके बारे में कुछ उत्तर है हमारा कमेंट पास? सदस्य महोदय, हमारी हिंदी भाषा में एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसको उड़िया भाषा में कहते हैं चाली में जा रहा है पाटरा जैसा। जैसे लगता है आपके पास कोई अपडेटेड न्यूज नहीं है। आपका हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, पर आप वही पुराने जमाने में बैठे हैं। थोड़ा तो अपडेट रहिए। खैर, आपको मैं ही बता देता हूँ। आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो पुराने वाले सर्वर का डाटा है, पर मैंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है वो न्यू अपडेटेड सर्वर का डाटा है। लाइक पुराने वाले सर्वर में चेन्नई का नंबर ऑफ केसेस 70,602 था और कोलकाता नंबर ऑफ केसेस 68,400 था। लेकिन अपडेटेड सर्वर के बाद चेन्नई का नंबर ऑफ केसेस 51,400 हो गया है और कोलकाता का नंबर ऑफ केसेस 21,600 है। असलियत में तो अपडेटेड सर्वर के मुताबिक इस दो जगह में पहले से मुताबिक कई बहुत कम केसेस आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस 70% से घटकर 20% हो गया है और इस 20% को कैसे घटाकर 0% किया जाए, इसके लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। धन्यवाद। कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है और इसके प्रकोप से भारत भी नहीं बच पाया है। 2 साल के लॉकडाउन और शटडाउन के बावजूद कोविड-19 के केसेस आज भी रजिस्टर होते हैं। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं कोविड-19 को कम करने के लिए वह भी प्रशंसनीय योग्य है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोविड-19 के केसेस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। It was a good discussion by respected opposition member Dr. Ranjan Panda and respected Health Minister Purna Pulabhai Mohanty. Now I request
respected opposition member Rajesh Behera to ask the question number 513. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी देश की जनता ये जान सकती है कि हमारा देश भारत, जो कि एक डेवलप्ड एंड एजुकेटेड कंट्री होते हुए भी राजनीति आज इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारी सरकार कुछ भी पदक्षेप नहीं ले रही है, जिसकी वजह से बहुत से मासूम स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसके लिए क्या कर रही है हमारी सरकार? Respected Education Minister Krishna Balaneka is requested to follow the question. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैम। मुझे लग रहा है कि माननीय महोदय के पास पूरी जानकारी ही नहीं है, तो फिर सुन ले। जैसा ही हमें पता है कि रैगिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हर स्टूडेंट को ये अधिकार है कि वो रैगिंग के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज अ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर फॉर स्टूडेंट्स टिल एज 18 इज 1098, जिसके तहत वो अपने प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। वैसे भी आपके टाइम पे तो रैगिंग इतना बढ़ चुका था कि वो तो डिस्कस करने का लायक भी नहीं है, और हमारे टाइम पे रैगिंग तो बहुत ज्यादा घट चुका है, और आपके और हमारे टाइम के बीच ना जमीन और आसमान का फर्क है। तो फिर रैगिंग के पैसे स्कूल और कॉलेजेस में क्यों कम नहीं हो रही है? इस रैगिंग को स्कूल और कॉलेजेस में हटाने के लिए आपकी सरकार क्या पदक्षेप ली है? तो जैसे कि माननीय सदस्य महोदय ने ये जानना चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने से क्या क्या पदक्षेप लिए हैं ताकि रैगिंग हट जा सके। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे पदक्षेप लिए हैं ताकि बहुत सारे स्कूल और कॉलेज से रैगिंग हट चुका है। जैसे कि और आप पदक्षेप की बात कर रहे हैं ना, तो फिर सुन लो। जैसे कि एडमिशन करने के वक्त स्टूडेंट्स एक अंडरटेकिंग लिखा जाता है ताकि वो कभी रैगिंग में इन्वॉल्व होकर अपना फ्यूचर का सत्यानाश ना करें। उनके साथ उनके गार्डियंस और पेरेंट्स को भी एक अंडरटेकिंग लिखा जाता है ताकि अगर उनके बच्चे कभी रैगिंग में इन्वॉल्व हुए या फिर रैगिंग का एक हिस्सा बने तो उन्हें पेनलाइज किया जाएगा। और पेनल्टीज जैसे कि सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड फाइन अप टू 10,000। और आपको प्रूफ चाहिए था ना, तो फिर सुन लो। So, 3 students from Government Medical College in Jalawar सस्पेंडेड बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन रैगिंग। और जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल कॉलेज में रैगिंग में इन्वॉल्व थे उन्हें कॉलेज से 5 ईयर तक एक्सपेल किया जाए ताकि वो कभी और कोई कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं करा सके। थैंक यू। आप लड़का रैगिंग करते वैसे सिंपली घर से निकाल दें। We can say that education is the backbone of our country, and raging is final solution of this backbone. Because now there is such a fear among the students about ragging that stops them from coming to school, and unfortunately ragging has increased so much that it has even taken the lives of some innocent students. And I am glad the way their problem and feelings has been represented by our respected opposition member Rajesh Behera, and there is a satisfactory answer by respected Education Minister Krishna Balaneka. Now I request respected opposition member Amrita Das to ask the question number 754. थैंक यू ऑनरेबल मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय महिला विकास मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि भारत जैसी देश जहाँ नारियों की शक्ति स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है, जहाँ शिक्षित नारे से माना जाता है, वही भारत देश पर होने वाले नारियों के ऊपर विभिन्न अत्याचार कब होगा? मेरा पहला प्रश्न वो होगी कि 2012 में होने वाले निर्भया अत्याचार के बाद से आज की वर्तमान सरकार क्या नारियों के ऊपर शारीरिक शोषण को रोक पाया है? मेरा दूसरा प्रश्न वो होगी जो कि महिला जिसका किसी घर का आधार मानी जाती है, उसका सबसे ज्यादा शोषण उसके घर के लोग की तरह क्यों होता है, जिसका प्रभाव बस उसके ऊपर नहीं उसके छोटे छोटे बच्चे के ऊपर पड़ता है, जो कि हमारे
Child Care Minister is requested to follow up the question. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले माननीय सदस्य ने जो प्रोग्राम के बारे में बोला उसके संबंधित तथ्य उनकी जानकारी के लिए देना चाहती हूँ। अच्छा माननीय सदस्य जी, शायद आपको मालूम नहीं है कि निर्भया कांड पिछले सरकार के समय में हुआ था, ना कि हमारे सरकार के समय में। और तो और उसको इंसाफ हमारी सरकार ने दिलवाई थी। और रही बात नारियों की सुरक्षा की, तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा देश आज डेवलप है। हमें पता है कि हमारा देश आज डेवलप है। हमें पता है कि हमारे देश में नारियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो पिछले सरकार के समय में बहुत ज्यादा था। अभी नारियों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर चुकी है, जैसे कि देयर आर स्पेशल सेक्टर्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड केयर एक्टिव फॉर 24/7 आवर्स। हर जगह में लेडी पुलिस ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया गया है, जो दिन रात मेहनत करके उनके अंडर में आने वाली हर एक जगह पर तैनात रहते हैं, ताकि वो जरूरत के समय पर काम आ सके और सारी शिकायतों का निवारण कर सके। और तो और एनजीओ की स्थापना भी की गई है, जिससे नारियां शर्मिंदगी से बच सके। मंत्री महोदय, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश में घरेलू हिंसा नहीं है? हमारे देश में आज क्या नारियों के ऊपर निर्यातन नहीं हो रहा है? अरे आप तो लज्जा के बाद में ना बताए तो सही रहेगा। अरे जो खुद लज्जा ही नहीं, वो क्या दूसरे की लज्जा के बारे में बताएगा? अरे आजकल नारी के सदस्य जो लोग शांत हो जाएंगे और अपने चाय पी लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अरे तो आजकल कहीं पिता तो पति और कहीं समाज के द्वारा नारी विकसित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य से ये कहना चाहती हूँ कि घरेलू हिंसा कोई मामूली हिंसा नहीं है। यह हमारे समाज में पूरी तरह से समा चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जहाँ नारी शोषित होने को अपना भाग्य मानती हो और जहाँ पुरुष शोषित करने को अपना पौरुष मानते हो, वहाँ से 2 लफ्जों की कानून कैसे काम आ जाएगी? अरे यहाँ तो बल्कि हमें नारियों को सजा करना होगा और हमें उन्हें बताना होगा कि उनका इस समाज में क्या महत्व है, उनको किस दर्जा से सम्मानित करना चाहिए। अरे हम यहाँ पर विपक्षी दल की सहायता की मांग करते हैं। लो भाई लो, अपनी चिकड़ी चिपड़ी बातें में हमको फैला रहे। अरे मंत्री महोदय, आपके सरकार आने के बाद लक्ष्य हरासमेंट की केस चला है, जिसको आप भी इनकार नहीं कर सकते। अरे आपकी पुलिसमेंट के डाटा बताता है कि एमपी में तो 20 से लेकर 33% तक और यूपी में 33% से लेकर 40% तक और बिहार में तो हद पार कर गई। क्या आप सुनना चाहोगे? 33% से लेकर 63% तक हो गए नारियों के खिलाफ अपराध। अरे स्पेशल सेल करने में कुछ नहीं होता। उस सेल का ऑफिसर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम है या नहीं, क्या आप चेक किए? अरे एक नारी वृद्धाश्रम पर 5 साल करके सक्षम है, लेकिन ना उस फोन पर इसका कोई रिप्लाई आता है, ना वही सारी समय जाकर उसको पुलिस रक्षा करता है। तो आप गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहना चाहता है? धन्यवाद। तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार और समाज में ऐसे घिनौने हरकत करने वाले लोगों को रोकने के लिए अनेक प्रभावशाली पदक्षेप लिया है हमारी सरकार ने। माननीय सदस्य ने जो निर्भया सेल के बारे में बोला, तो मैं ये माननीय सदस्य से बता दूं कि एक नारी घरेलू हिंसा से और दूसरे अत्याचारों से बचने के लिए डायरेक्टली और उससे बच पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखवा सकती है। और तो और हमारी सरकार आने के बाद ऐसे बहुत सारे महिला कमीशन भी बना चुकी है, जो कि हर वक्त एक्टिव रहती है। और एक बात बता दूं सदस्य महोदया कि भारत में प्रमुख शहर जहां पे ऐसे घिनौने हरासमेंट और नारी अत्याचार के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। वो नीचे करके क्यों बोल रहे हो? चुपचाप क्यों बोलो? माननीय सदस्य कृपया शांति बनाए रखें। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता ऐसे शहर में हर एक गलियों में टाइट सिक्योरिटी प्रदान की गई है और सीसीटीवी का भी व्यवस्था की गई है। और हमारी सरकार नारियों को डेवलप बनाने के लिए और उनको हर स्किल में कैपेबल बनाने के लिए मिशन शक्ति जैसे कई ऐसे ग्रुप्स बनवाए हैं, जिसके मेंबर्स डिफरेंट एरियाज में जाकर शोषित नारियों को समाज में उनकी क्या महत्व है ये समझाते हैं।
नारी सिर्फ दो अक्षरों से बना एक शब्द नहीं है। जननी, स्त्री और महिला जैसे तीन गुरुवर्णों का समाहार है नारी। इसलिए नारी का सम्मान अनिवार्य है। उनका सम्मान करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसकी सुरक्षा में जो भी पदक्षेप लिए गए हैं और उसे फॉलो करने के बाद भी आज भी हमारे देश में नारी अत्याचार होते हैं। ये सच है कि वो थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन बंद तो नहीं हुए। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आने वाले कुछ सालों में नारी अत्याचार हमारे पूर्ण भारत भूमि से संपूर्ण रूप से बंद हो जाए। It was a great discussion by respected opposition member Amrita Das and respected Women and Child Care Minister